Assalamu alaikum everyone. Welcome to Stars of NUST. I'm your host Sana Zafar. हम आपको मिलवाते हैं NUST के ग्रेजुएट से who are breaking grounds in all corners of the world. आज के स्टार ने हमें ज्वाइन किया है from लाहौर. हमारे साथ हैं Mr. मंजर बशीर. अस्सलाम वालेकुम मंजर. Thank you for joining us. जी अस्सलाम वालेकुम. Thank you for inviting me. Lovely to be here. Thank you. Mr. मंजर ने NUST से ग्रेजुएट किया back in 2004 when he completed his MBA from NUST Business School. Currently, he is CEO and founder of Potential Mapping. आइए इनसे मिलते हैं और पूछते हैं पोटेंशियल मैपिंग के बारे में भी और जनरली उनकी जर्नी के बारे में. थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला. हाउ इज इट इन लाहौर? काफी स्केरी न्यूज़ आजकल सुनने को मिलते हैं फ्रॉम ऑल अराउंड. आई होप एवरीथिंग इज फाइन विद यू एंड योर फैमिली. Everything is fine अल्हम्दुलिल्लाह. स्मॉग की वजह से आज स्कूल्स ऑफ किए हुए हैं, so all my kids are at home. So other than that, we just hope that it gets better. But other than that, alhamdulillah, everything is fine. प्लीज स्टार्ट कीजिएगा थोड़ा सा अपनी जर्नी से, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, हाउ यू एंडेड अप बीइंग सीईओ ऑफ पोटेंशियल मैपिंग. Yeah, so I did my MBA from NUST in 2004. तब मैंने graduate किया, masters majors HRM में था. Then I went to London to study masters in human resource development, जिसमें मेरे subjects जो majors थे that were related to business psychology, जहाँ पे मेरा primarily interest develop हुआ. और I came back, started working for Allied Bank as manager training and development. वहाँ कुछ देर काम किया. After that, I joined Bank of Punjab as a lead assistant vice president. उनकी training और recruitment department दोनों को lead कर रहा था. So one of the projects that I handled was hiring of MTOs from just 25 MTOs from a list of almost 15,000 people. So that was a good learning experience for me. उसके बाद in 2010, I realized that I don't, मतलब मुझे idea था. I knew I didn't want to do this much. I wanted to run something of my own. Of my own का मतलब ये नहीं कि I was averse to job. It was just that I wanted to work in helping people understand themselves better. And there's no better field in doing that than business psychology. और उसके लिए लेकिन ज़रूरी होता है कि you just can't move into business psychology के जी मैंने business psychologist बनना है. There's qualifications. कुछ बॉडीज हैं जिसका एसोसिएशन फॉर बिजनेस साइकोलॉजी है, वहाँ पे आई एम अ सर्टिफाइड बिजनेस साइकोलॉजिस्ट. जो एचआर की सीआईपीडी की बॉडी है, वहाँ पे आई एम अ चार्टर्ड मेंबर. तो कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ डिफरेंट टूल्स होते हैं, जिस तरह एमबीटीआई का एक टूल है जो सबने सुना हुआ है. आई एम क्वालिफाइड इन दैट. होगन है, सेविल है, इमोशनल इंटेलिजेंस है. सो दिस इज माई जर्नी. इट वॉज रियली डिफिकल्ट फॉर मी इन द स्टार्ट बिकॉज पीपल डिडंट नो मच अबाउट इट. लेकिन I ran a lot of free seminars. I went to universities, I went to companies. क्योंकि मुझे सेलिंग से पहले ज़्यादा चैलेंज आता था ऑफ कन्विंसिंग पीपल. पहले उनको बताना पड़ता था कन्विंस करने से भी पहले कि ये है क्या. सो बट it's been a very worthwhile journey, a lot of learning. And currently I'm working with clients including US Embassy, State Bank. I've also worked with civil services, Emirates. तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के साथ अब काम करता रहता हूँ. माशाल्लाह, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है because it's quite unique, it's quite different. How did you come up with this idea of, after HR, MBA, HR ज़्यादा ये सुनने को नहीं मिलता जो अभी हमने आपकी जर्नी से सीखा. How did you come up with the idea that you want to do in this field something? So it's really strange. मुझे जब मैं स्कूल में था I was really good at maths, but I hated maths. तो जिनको मैं बताता था वो कहते थे कि कैसे हो सकता है, if you're good at something, how can you not like it? और वही चीज़ मैंने eventually discover की that liking something and being good at something are totally different. अगर वो दोनों चीज़ें एक हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है. And especially if it pays well, तो वो तो उससे भी अच्छी बात है. But मैं, although I used to get scores in 90s in my school and everything, लेकिन मुझे था कि I don't want to do anything related to maths, so finance was out of the question. मुझे, since I was a kid, I have very good observation skills. तो मुझे था कि मैं उसको यूज़ करूँ. While working in business psychology, people feel कि होता ये कि आपको ज़्यादा बोलना होता है, ऐसे बिल्कुल नहीं होता. You have to let the other person talk. उनको you have to ask the right questions, make the connections, seek the context, और फिर आप पूरा connection करके उनको बताते हैं कि alright, this is what we think it is. बल्कि हम कोशिश करते हैं कि उनको उस result तक पहुंचने दें instead of putting words into their mouth.
So I felt when I started my business, I thought, अच्छा ठीक है, I'll do a lot of things, trainings और ये चीजें. But within 6 months, I realized no, I just want to stick to business psychology. मुझे कोई normal training आती थी तो मैं कई दफा रिफ्यूज कर देता था. बट उसका नुकसान भी हुआ थोड़ा सा, लेकिन फायदा ये हुआ that people know that he is a specialist. और वो ये चीजें अगर करनी हो तो मंदिर बशीर is one of the names जिसमें पाकिस्तान में जिनके पास आप जा सकते हैं. So I'm really glad that it worked out your way. आप जो बात कर रहे हैं जितनी मुझे समझ आई है, it's like you make people understand what their true calling, what Yeah, actually so to keep their fancy as I they say nowadays. Is that what potential मैं mapping is? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ. सो पोटेंशियल मैपिंग, सो माय वेबसाइट इज potentialmapping.com. बेसिक अगर बिल्कुल फंडामेंटली बताऊँ ना, so there are two things. One is identity, what I think of myself. For example, if I am sitting quietly in a meeting making mental notes and connections, तो मैं समझ रहा हूँ कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ. ये मेरी आइडेंटिटी है, what I think about myself. And there you are sitting in the meeting talking कि why isn't Mansur speaking, ये बोल ही नहीं रहा, ये अलूफ है. That's my reputation. सो मसला ये आता है, आप मुझे उठ के कहेंगे कि मीटिंग खत्म होगी, आप तो कुछ बोले नहीं, और मैं कहूँगा देखिए मैं तो आई वाज मेकिंग मेंटल नोट्स बट यू कांट सी माय मेंटल नोट्स. सो दैट इज वेयर ये आइडेंटिटी और रेपुटेशन में गैप काफी ज्यादा होता है. सो व्हाट वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, मे बी आई एम समबडी हु लाइक्स टू स्टार्ट थिंग्स अहेड और बहुत जल्दी काम करने की आदत है. मे बी समबडी एल्स सेज दैट आई एम अ क्रेजी पर्सन, और मे बी आई एम अ पर्सन हु इज फ्लेक्सिबल, एंड पे जाके स्टार्ट करता है और उसको दूसरे लोग लेजी कह सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आई हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ अदर्स सी यू. तो उससे उनको फिर पता लगता है. फॉर एग्जाम्पल यू से समथिंग टू समबडी और आप कहते हैं मैंने तो इसे कुछ नहीं कहा, आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन फ्लिप्ड आउट. सो दैट्स द गैप बिटवीन आइडेंटिटी एंड रेपुटेशन. So how exactly does it happen? आप थोड़ा सा explain करेंगे? People come to you. I'm very interested to know. People come to you and then you understand, do their business better. सो नॉर्मली क्या होता है कि ज़्यादातर अराउंड 75% आई वर्क विद द ऑर्गेनाइजेशंस और 25% मेरे पास इंडिविजुअल क्लाइंट्स आते हैं. और उस 25% में से अराउंड 80% जो है समझ लें कि वो मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं जो प्राइवेट कोचिंग के होते हैं. सो सबसे पहले आई डोंट हैव अ वन स्टॉप सोल्यूशन कि जी ये ऐसे करना है. मैं पहले उनके साथ कोई भी मेरा क्लाइंट हो मैं उन्हें कहता हूँ ठीक है, आई गो विद अ 30 मिनट कॉल और उसके कोई चार्जेस नहीं लेता. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप क्या चाह रहे हैं, आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है. व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल, आई कांट जस्ट अप्लाई ऑन यू क्योंकि आप भी उसी इंडस्ट्री में हैं या उसी तरह की जॉब करते हैं. सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. देयर आर सम पीपल हु वांट टू, मतलब वो कहते हैं जी हमने प्रमोशन हमें चाहिए, वी स्टक इन आवर करियर्स. कुछ लोग कहते हैं कि हमने करियर ट्रांजिशनिंग करनी है. वन ऑफ माय क्लाइंट्स, शी वाज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचआर इन अ प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब. तो वो कह रही थी कि आई वांट टू मूव इनटू फार्मूला 1 रेसिंग. तो मेरे लिए ऑल्दो ये लगता है कि एचआर भी जा रही हैं, स्पोर्ट्स में जा रही हैं, बट दिस कैन बी अ बिग चैलेंज. उनकी स्पोर्ट्स की डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है. सो वंस आई अंडरस्टैंड दैट तो फिर मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ कि अच्छा ये असेसमेंट है जो हम ले सकते हैं. टॉप लीडर्स के लिए कई दफ़ा हम इमोशनल इंटेलिजेंस यूज़ कर लेते हैं. वरना एक स्ट्रेंथ्स प्रोफाइल होता है होगन का, जिसको हम होगन पर्सनालिटी इन्वेंटरी कहते हैं. एक और चीज है ना विच इज वेरी इंटरेस्टिंग इज होगन डेवलपमेंट सर्वे. सो वो आपको इट्स बेसिकली आल्सो कॉल्ड डार्क साइड. सो इट टेल्स यू कि अगर आपके ऊपर प्रेशर या स्ट्रेस आए तो आपकी डिरेलमेंट के चांसेस क्या होते हैं. तो वो काफ़ी कंपनीज यूज़ करती हैं. ओमान की गवर्नमेंट के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, तो दे इनवाइटेड मी ओवर टू ओमान वाज 2 years ago. तो वहाँ पर ऑलमोस्ट यही चीज़ हमने असेसमेंट की, उनको बताया कि ऑलराइट दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ द पीपल, बट वी रन दी असेसमेंट, देन वी वैलिडेट दी असेसमेंट थ्रू इंटरव्यू. हम ये नहीं करते कि असेसमेंट लेके उनसे कहें कि अच्छा ठीक है जी नाउ इट्स डन, बस आपको रख लिया या नहीं रखना, प्रमोट किया या नहीं किया. सो इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर पास्ट परफॉर्मेंस. हम जो मेजर करते हैं वो उनका पोटेंशियल होता है विच इज इन द फ्यूचर. बहुत मजे की बात लग रही है मुझे आपकी whatever you're talking about, because again it's very different. Normally हम वही especially हम जो BBA MBA करके आते हैं, what we see is banking and FMCGs and you know one way or the other हम इन्हीं के around बात कर रहे होते हैं. आप बहुत interesting बात कर रहे हैं. And why am I so interested in particular is because what I'm doing right now, I never thought I would do in my life. Things just happened. I didn't have a potential coach with me or anything, but it just happened this way. The personal life shaped my journey like this, that I always wanted to do something in marketing. In hypothetical situation, I would have been a director of marketing somewhere at this point in my life, but it didn't happen. What I'm doing right now, I don't think so I've ever enjoyed doing anything else in my life to this extent, but I never ever thought I can do that.
So इसलिए मुझे Exactly. बहुत इंटरेस्ट है कि if there is somebody out there who actually helps people understand their true calling, and they can obviously perform a lot better than if they understand that. It's good for the Exactly. organization, it's good for the individuals as well. So जबरदस्त, बहुत खुशी की बात है कि there are people out there who are doing that. थोड़ा सा आते हैं आपकी पर्सनालिटी की तरफ. आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? अगेन आपकी जर्नी से इसका क्या लिंक है? क्योंकि व्हाट यू आर डूइंग मेकिंग पीपल अंडरस्टैंड दैट इट मस्ट बी चैलेंजिंग. आपको लगता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी की कुछ ट्रेट्स हैं दैट यू डेवलप्ड ओवर टाइम और यू ऑलवेज हैड दोस दैट हेल्प यू बी देयर वेयर यू आर? ऑफ कोर्स ये करते हुए सबसे पहले तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी पोटेंशियल वीकनेसेस देखनी थी. तो आई एम नॉर्मली अ पर्सन हु इज ऑब्जर्व्स मोर, रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों पे. दैट वाज द स्ट्रेंथ दैट आई थिंक आई रियली यूज्ड व्हाइल बीइंग एन असेसमेंट एक्सपर्ट. एक जो शॉर्ट कमिंग थी मेरे अंदर वो ये थी कि आई ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी लॉजिकल. बट व्हेन यू आर डीलिंग विद पीपल आप हर जगह लॉजिक नहीं, यू हैव टू यूज empathy, you have to understand the context. So this is something that I've worked on. और मैंने उसके लिए खुद भी काम किया. और मेरे जिस तरह मैं CIPD में अपना खुद लोगों को मेंटर करता हूँ, तो हमारे कुछ सीनियर्स थे यूके के बेस, तो उनसे मैंने टिप्स ली कि हाउ टू डेवलप दिस. दिस वाज वे बैक 8-9 इयर्स की बात पहले. उन्होंने बताया कि दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट, दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज यू कैन डू, दीज आर सम ऑफ द बुक्स दैट यू कैन रीड. तो मैं ये नहीं कह सकता कि इफ यू आर कमिंग टू मी तो आई एम अ परफेक्ट पर्सन. आई एम ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग. सो आई थिंक एम्पैथी इज समथिंग व्हिच आई हैड, लेकिन वो पीछे हिडन थी थोड़ी लॉजिक के पीछे. अब मैं उसको लॉजिक के साथ थोड़ा लेके यूज करता हूँ. ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है और इसमें मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड होंगी बिकॉज आई थिंक माई सेल्फ एंड मेनी अदर गर्ल्स कैन रिलेट. मोस्ट ऑफ द हस्बैंड्स आर लाइक दैट. They are very logical. They mean well, they care for you, but they are too logical at times. So having empathy maybe helps the whole situation here. बिल्कुल. आपकी जो पूरी जर्नी है इसमें आपका डिफाइनिंग मोमेंट क्या था? कैन यू थिंक ऑफ वन जब आपने साइकोलॉजी पढ़ने का सोचा, जब आप लंदन गए, या व्हेन यू केम टू दिस बिजनेस? मेरा इफ आई से देयर वाज नो सच ऐसे कोई पॉइंट नहीं था जिसपे मुझे लगे कि अच्छा नहीं आज मैंने ये करना है. बट जब मेरे फर्स्ट एक जो प्रोजेक्ट्स हो गए ना, तो आई रियलाइज दैट आई हैव मेड द राइट डिसीजन. मेरा पहला प्रोजेक्ट था टेस्कॉन वेयर आई वर्क, मतलब वन ऑफ माय फर्स्ट प्रोजेक्ट्स वाज टेस्कॉन. एंड वो बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि उनकी टॉप की HR की टीम इंक्लूडिंग हेड ऑफ HR सबके साथ काम कर रहा था. देन आई रैन अ फ्यू प्रोजेक्ट्स विद द लाइट बैंक, उनकी प्रमोशंस रन करनी थी. उन वो रन करके मुझे लगा कि यस ऑफ कोर्स हर किसी की एक फाइनेंशियल इंसेंटिव होता है, बट आई एम डूइंग समथिंग दैट आई लाइक. और पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने जिस तरह बताया 2015-16 तक तो लोगों को बड़ी बड़ी, आई वोंट नेम द कंपनीज, उनके हेड HR कहते थे कि ये क्या चीज़ है, आप कहाँ से लेकर आए हैं. लेकिन अब लोगों को इसकी अवेयरनेस आ गई है. सो इट्स मच बेटर नाउ. बट आई वुड स्टिल से कि मेरे जो ज़्यादातर 1-to-1 कोचिंग के क्लाइंट्स आते हैं दे कम फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान. और जैसा मैंने ओमान का प्रोजेक्ट बताया, कभी दुबई का आ जाता है. कोविड की वजह से इट्स ऑल ऑन द फीस. लेकिन ये कि जनरली मेरे फिर मिडिल ईस्ट के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जहाँ फिर मैं आई हैव टू ट्रैवल एंड डू दैट. सो आई वोंट से देयर वाज एनी सच डिफाइनिंग वन मोमेंट. बट जो पहले एक दो प्रोजेक्ट्स थे आई फेल्ट कि नहीं, आई अल्हम्दुलिल्लाह मेड द राइट डिसीजन. बहुत इंटरेस्टिंग बात है. आई वांटेड टू नो कि आपकी जो टीम है उसके लिए भी आपको लोग मिल जाते हैं इजीली पाकिस्तान से? लाइक यू मेंशन के क्लाइंट्स तो मोस्टली पाकिस्तान से बाहर होते हैं, who really understand the whole process. Are there people willing to work in this direction or you have to teach them as Yes. well? Yes, there are. Actually, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं अब जो इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशनल साइकोलॉजी में एमफिल और मास्टर्स करवा रही हैं. तो I have a very small team that works with me. 4 लोग हैं मेरे अलावा. लेकिन जब हमारे पास प्रोजेक्ट्स आते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है, तो हम फिर क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड का कंसल्टेंट्स को ऑनबोर्ड कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड. और ये चैलेंज वाकई आता है कि कई दफ़ा हम कंसल्टेंट के पास HR का बहुत एक्सपीरियंस होता है, बट आई हैव टू ट्रेन देम और उनको ओरिएंटेशन देनी पड़ती है कि ये चीज़ करनी है. उस सेंस में जो आप कह रही हैं, मे बी आई फील 3-4 years डाउन द रोड मुझे काफ़ी आसानी हो जाएगी. लेकिन अभी थोड़ा सा चैलेंज आता है, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैलेंज. It's learning definitely for you as well as people who are joining as well. आपसे मैं एक दो क्वेश्चंस और करना चाहती हूँ which are not directly related to your field or maybe your personality as well. पहले तो आप बताएं, आप you must be dealing with so many different industries. It's not an industry specific job what you do. हमें जनरली जो पूरी दुनिया में लगता है कि अब एक अवेयरनेस आ गई है, यहाँ आ रही है, सेंसिटिविटी है, वी कॉल आउट रेसिज्म, वी कॉल आउट कलरिज्म, हम
हर तरह से जेंडर इक्वालिटी पे हम बाद में आएंगे, लेकिन हम हर तरह से बात करते हैं इक्वालिटी की, इंक्लूजन की। आपको लगता है कि पाकिस्तान हैज आल्सो प्रोग्रेस्ड इन दैट डायरेक्शन? I think this is getting better in Pakistan. So I work with organizations जहाँ पर people from different races, people from different religions are working. Or overall, I think there is still room for improvement. बल्कि I would say a lot of room for improvement. But I would also say कि चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं, especially the new generation. जो नए बच्चे आ रहे हैं, इनके बहुत सारे challenges भी हैं. मोबाइल, नेटफ्लिक्स और ऑफ कोर्स ये चीज़ें इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल है. बट इनके माइंड वैसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं एज एटलीस्ट एज कम्पेयर टू माय जनरेशन व्हिच वाज बोर्न इन द अर्ली 80s. दैट्स गुड टू नो, बिकॉज़ अवेयरनेस है, ऑल्दो ये भी एक डिबेटेबल थोड़ी-सी बात हो जाती है, बिकॉज़ नाउ वी नो कि हम पे सोशल मीडिया की पावर का प्रेशर भी है। सो वी आर ऑल लिटिल मोर केयरफुल, वी डोंट वांट एनीथिंग टू गो वायरल, एंड सो हम शायद कई दफ़ा बहुत फेस सेविंग भी कर रहे होते हैं, सो वी डोंट रियली नो कितनी हमारी वैल्यूज़ इम्प्रूव हुई हैं और कितना वी आर ट्राइंग टू कवर इट अप। बट ओवरऑल मुझे भी लगता है, जैसे लेटली मैंने इंडिपेंडेंस डे पे एड्स देखे, जिनमें बहुत इंक्लूजन थी, जिसमें आप डिफरेंटली एबल्ड लोग दिखाए, हर रिलीजन से दिखाए, हर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी से, सोशल इकोनॉमिक क्लासेस जो हैं उन डिफरेंट से दिखाए। ये हमें पहले इतना नजर नहीं आता था। सिमिलरली फॉर अदर ब्रांड्स बीइंग अवेयर कि वो कितने सेंसिटिव हैं अपने मैसेज में, अपनी बात में। एक एक चीज है जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें आई थिंक एज एज पाकिस्तानी नेशन वी ट्राई टू ओवर एम्फसाइज ऑन आवर स्ट्रेंथ. मैं कुछ लोगों को मिला हूँ जिनके साथ एक्चुअली हु आर नॉट फ्रॉम मतलब मुस्लिम्स नहीं है, तो वो ये कहते हैं कि ऑल्दो नॉर्मल चलता रहता है बट कभी ना कभी हमें पता लग जाता है या एहसास दिला दिया जाता है कि यू नॉट मुस्लिम इन टर्म्स ऑफ गैदरिंग. और मेरा क्योंकि ये सैंपल बहुत छोटा सा है, मैं 8-10 लोगों की बात कर रहा हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ी बात कोई क्लेम नहीं कर सकता. बट जनरली आई बिलीव जो आप कह रही है ना कि कुछ चीज़ें हमारे ऊपर प्रेशर आता है. आप देखें बाहर भी और हर जगह पे आपने सोसाइटी के रूल सेट करने होते हैं. किसी की नीयत क्या है और वो किस लिए कर रहा है, वी कांट फिगर दैट आउट. बट व्हाट वी कैन फिगर आउट इज कि अगले बंदे को पता हो कि ये एथिकल बाउंड्रीज हैं, इनको फॉलो करना और इनको क्रॉस नहीं करना. बिल्कुल ठीक बात की आपने, और आई थिंक बचपन से अगेन हम सबका सैंपल साइज छोटा ही होता है, बिकॉज हम अपने ही लिमिटेड इंटरैक्शन से ही बात करेंगे। लेकिन बचपन से आपको घरों में लगता है सिंपल हाउस होल्ड हेल्प अगर आप हायर कर रहे हैं तो उसमें भी अक्सर क्वेश्चंस होते हैं, किचन में काम करना है, मुस्लिम्स हैं नहीं है, एंड यू नो द मोमेंट यू हेयर कि बाहर के किसी मुल्क में, किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में कहीं मुस्लिम्स के साथ कोई अनफेयर हुआ है तो यू लूज इट कम्प्लीटली कि हाउ डेयर दे। लेकिन हम रोज वो चीजें खुद भी कर रहे होते हैं, वो नॉर्म बन That's चुकी true. हैं, एक्सेप्टेबल हैं। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू पॉइंटेड आउट कि हम जब रिलीजियस एक्सेप्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वहां भी वी हैव टू ओपन अप अ लिटिल मोर देन वी डू। बिल्कुल बिल्कुल. अब मैं थोड़ा सा आऊंगी जेंडर इक्वालिटी के बारे में। आपको क्या लगता है ओवरऑल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज कोई प्रैक्टिसेस हैं, कैन वी somehow shorten bridge the gap between theory and practice, because theory में तो हमें पता है हर organization के code of conduct में भी बहुत कुछ लिखा होता है, to be you know respectful this and that, and hiring में कोई issue नहीं होना चाहिए, but we see the things are still there. How do you see it? अभी आई वाज टॉकिंग टू अ क्लाइंट जिनको एक चैलेंज आ रहा था इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड, और मैंने उनसे वैसे ही पूछा. मैंने कहा व्हेन व्हेन यू आर हायरिंग मैनेजर्स, रिक्रूट या इंटरव्यू करते हैं, तो डू यू हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज जिसकी बेस के ऊपर आप करते हैं? वी डोंट हैव अ सेट ऑफ वैल्यूज. तो हमारे भी जो एज अ नेशन वैल्यूज जो हैं वो ओवरऑल उस तरह से डिफाइंड नहीं. ठीक है, अभी भी खवातीन को, विमेन को स्टीरियोटिपिकल रोल्स के अंदर देखा जाता है. आई नो कि एचआर में, मार्केटिंग में फीमेल्स का नंबर इंक्रीज हुआ है, बट आई वुड रियली वांट कि टेक्निकल जॉब्स के अंदर उनका ज़्यादा है. फॉर एग्जांपल हमारी आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस है या इंजीनियरिंग जॉब्स हैं, वहाँ पर आई वुड रियली वांट कि उनका रेशो वहाँ पर भी ज़्यादा है ताकि वो रिसर्च में और बाकी चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट कर सकें. अभी पहले से हालात बेहतर हुए हैं, ऑन द सरफेस शो किए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. और इसमें मैं समझता हूँ कि एज मदर एंड फादर, स्पेशली मदर्स को भी ये देखना चाहिए और फादर्स को भी देखना चाहिए कि अपनी वो जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको इनकरेज करें टू बी इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट आई मीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आजकल के दौर में जितनी महंगाई और चीज़ें होती जा रही, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर वन पर्सन टू मैनेज. एंड इवन इफ वन पर्सन कुड मैनेज, व्हाई शुडंट दे हैव द स्किल्स?
एंड व्हाई शुडंट दे हैव, अगर वो काम नहीं करना चाहती, दैट्स देयर ओन चॉइस, बट ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक लेवल तक पढ़ा दिया और उसके बाद कहा कि बस इसकी शादी कर देनी, शादी भी करनी है वो तो एक पर्सनल चीज है, बट they should have the education, they should have the skills so that if they want to work, they have that opportunity to work. एब्सोल्युटली। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी होना और चॉइस होना इज डिफरेंट थिंग। जैसे इंजीनियरिंग की आपने बात की Yeah, तो अक्सर ये होता है कि हाँ सर्टन फील्ड्स में लड़कियों को इतना इंटरेस्ट है या नहीं है, इट्स अ पर्सनल थिंग, बट अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, क्या वो उनके पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं उनका एडमिशन लेने में, या यूनिवर्सिटीज इनटेक कर रही हैं या नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस हायर कर रही हैं कि नहीं, दिस वी नीड टू वर्क ऑन। हम उनकी पर्सनल चॉइसेस तो बिल्कुल। मे भी उनको हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल चॉइसेस हम किसी की चेंज नहीं कर सकते, हम एज अ सोसाइटी चेंज कर सकते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दिस। जैसे आपने पहले मेंशन किया था आपकी मदर का, आप बता रहे थे। See, so my mother was a working woman. She was a gynecologist. उनको pride of performance भी मिला president की तरफ से after death. So I've seen के even उस टाइम पे 90s में 80s में when she was working तो बहुत मुश्किल था। अभी भी two of my sisters are gynecologists. My sister-in-law, she is dean at King Edward. तो मुझे ये चीजें देख के बहुत अच्छा लगता है। एक और चीज जो मैं फीमेल्स को कहना चाहूंगा, आई वाज टॉकिंग टू माय नीसेस कपल ऑफ डेज अगो, और मैं उनको बता रहा था, मैंने कहा देखो, इवन इफ यू हैव ग्रो अप, इफ यू हैव किड्स, अब कोविड के बाद पीपल आर वेरी ओपन टू वर्किंग फ्रॉम होम, तो वील सी व्हाट द न्यू नॉर्मल इज गोइंग टू बी वंस दिस कोविड सेटल्स डाउन। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होंगी। पहले अब लोग अब इस तरह नहीं करेंगे कि 9 to 5 जॉब है, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो वहां तो एक आपने एक पूरा करना होता है, बट अदर देन दैट देयर विल बी plenty of opportunities even for females जिनको थोड़ी restrictions है कि नहीं बच्चे भी देखने हैं और घर को भी देखना है, तो डोंट लिमिट योर सेल्फ कि जी हम क्योंकि जॉब कर नहीं सकते तो हमने पढ़ना नहीं है, ये गलत अप्रोच है, ऐसा प्लीज ना करें। That's very true and yes, हम टेक्नोलॉजी को शायद उसके फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं कर रहे थे जितना हमें कोविड ने फोर्स कर दिया टू रियलाइज, एंड बिल्कुल। only to realize that maybe even for organizations it's easier if people work from home। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करता है किसकी कितनी फिर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है कम है, इट डिफर्स, लेकिन ऑफ कोर्स आप इतने बड़े बड़े ऑफिस जब चला रहे हैं उसकी जगह हर कोई घर से काम कर रहा है, आपकी रिसोर्सेज भी डिफरेंट तरीके से यूज हो रहे हैं। सो नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर रियलाइजिंग दे आर हैप्पी विद पीपल वर्किंग फ्रॉम होम एज लॉन्ग एज दे आर वर्किंग। सो यस, इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर फीमेल्स एज वेल। आप और सना, एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि प्लीज। एक्चुअली जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था ना, तो एनालिसिस ये था, फोरकास्ट ये थी कि लोगों की प्रोडक्टिविटी कम होगी वाइल वर्किंग फ्रॉम होम, बट सीआईपीडी और इस तरह की बहुत सारी बॉडीज ने जो रिसर्च की है, प्रोडक्टिविटी हैज एक्चुअली इंक्रीज्ड व्हिच हैज टेकन द ऑर्गेनाइजेशन बाय सरप्राइज। सो एक्चुअली अब ये रिसर्च आ चुकी है। यस एब्सोल्युटली, एंड आई थिंक जो फीमेल्स की भी आपने बात की, ऑफ कोर्स उनकी भी आई डोंट नो, उनको एक पुश भी मिल गया है, दे कैन डू मोर फ्रॉम होम विद फ्लेक्सिबिलिटी। हाउस होल्ड है, बच्चे हैं, वट एवर, बट दे कैन मैनेज बीच में जो टाइम उनको मिलता है, दे कैन मैनेज विद मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू गोइंग टू ऑफिस, कमिंग बैक टू ऑफिस फॉर सर्टेन आवर्स एंड ऑल। बिल्कुल। आपसे मैं पूछना चाहती थी, कोई इंस्पायरिंग फिगर है आपकी लाइफ में? व्हाट इंस्पायर्स यू और हु इंस्पायर्स यू, समबडी यू वांट टू मेंशन? एक टाइम तक मुझे there's this politician who was a Democratic candidate, Senator Elizabeth Warren. I really used to admire her, but उनका जो स्टैंस आया इसराइल और पैलेस्टाइन के, उसके बाद मुझे उनके ऊपर थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा। मतलब शी वुड हैव बीन मोर फोर्थकमिंग, अगर कंडेम करना है किसी को तो वो आपको दोनों तरफ को करना चाहिए। मी बीइंग अ पर्सन, आई सो सम ऑफ माय ब्रदर्स सिस्टर्स या दोस्त आके कहते हैं अच्छा तुम्हारा ये बेटा तुम्हारी तरह, ऐसे आई ऑलवेज से कि ऐसा प्लीज इनको ना कहा करें, क्योंकि आई वांट देम टू बी इंडिविजुअल्स जो अपनी मर्जी से अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। सो आई लाइक सर्टेन थिंग्स इन सर्टेन पीपल। किसी की मुझे कोई बात अच्छी लगती है, बट ओवरऑल मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि मैं किसी एक बंदे को कहूँ। मैं रिलीजन की तरफ जाना नहीं चाहता, इफ आई हैव टू से तो आई से ऑफ कोर्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ये कि अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज वन पर्सन जिसको मैं कहूँ कि ये परफेक्ट और मैं इसको फॉलो करूँ। Nobody is perfect, but I was just saying, जैसे आपको अगर I don't know EB personally, या but you know he's the most inspiring figure. I mean in that sense ऑफ कि कोर्स ये तो वो लोग हैं जिनके बारे में आंखें बंद करके कहा जा सकता है कि दे वर अ रे ऑफ लाइट
One of the persons that comes to my mind is the former जो लेबर पार्टी के लीडर थे जेरेमी कॉर्बिन. आई थिंक ही, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ें तो he has been on the right side of history since the last 40 years in politics, and I've not seen a person like him जिसका प्रिंसिपल स्टैंड हो. आपकी देखें थिंकिंग छोटी छोटी बातों पे चेंज होती रहती है, बट जो आपकी कोर वैल्यूज हैं, इंटेग्रिटी है, ऑनेस्टी है, वॉर के अगेंस्ट रहना है, वो ही हैज बीन स्टेडफास्ट. सो आई कैन से दैट ही इज वन ऑफ द पीपल जिसको मैं कह सकता हूँ मॉडर्न एरा में दैट आई रियली रियली लाइक. कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को? एडवाइस मैं ये देना चाहूँगा कि अक्सर लोग मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं जी कि अगर हमारे करियर असेसमेंट में आ गया, एग्जांपल देता हूँ, देयर इज दिस राइसिक कोड, हॉलैंड कोड्स उनको कहते हैं, राइसिक, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, कि आप किस तरह के. तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी अगर मैं आर्टिस्टिक हूँ तो फिर इसका मतलब है मुझे क्रिएटिव डिजाइनर बनना चाहिए. तो मैंने कहता हूँ नो, इट्स नॉट दैट. एन इंजीनियर कैन बी क्रिएटिव. माय ब्रदर इज अ कॉस्मेटिक सर्जन, ही कैन बी क्रिएटिव. अ रिसर्चर कैन बी क्रिएटिव. एन आर्टिस्ट कैन बी क्रिएटिव. इवन पुलिस के अंदर जो क्राइम्स को सॉल्व करते हैं, दे कैन ऑल्सो बी क्रिएटिव. तो हमारे एक वो हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही हम समझते हैं कि जी स्पेशल चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें लिमिटेड हैं. What the assessment does is कि it opens up a lot of information for you so that you can make a rational decision. और ये जो करियर प्लानिंग होती है या सेल्फ डेवलपमेंट होती है, ये वन ऑफ इवेंट नहीं होता. और ये कभी भी मेरा एक जो चैलेंज है विद मोटिवेशनल स्पीकर्स इज कि वो बातें वो बताते हैं जो उस वक्त तो मोटिवेट कर देती हैं, बट वो आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते. सो व्हाट द असेसमेंट डज इज कि टेल्स यू कि अच्छा ये आप चाहते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये वीकनेसेस हैं, देन यू हैव इंफॉर्मेशन, देन यू हैव अ कोच हू कैन टेल यू कि क्या करना चाहिए. तो मैं उनसे यही कहूँगा कि स्पेशली पीपल हु आर स्टार्टिंग आउट इन देयर करियर्स, लुक फॉर द वैल्यूज दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफरिंग. क्या चीज़ वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और अगर आपकी वो फंडामेंटल वैल्यू से क्लैश कर रही है तो आपके लिए वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा. सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, बट सो आर अदर थिंग्स लाइक वैल्यूज, कंपैटिबिलिटी, कल्चर एंड सो ऑन. दैट्स अ वेरी गुड एडवाइस एंड आई थिंक बिल्कुल शुरू में एडवाइस मिलना बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल. हम बहुत ज़बरदस्त आपसे गुफ्तगू हो रही है, हम और भी इसको लंबा कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड टाइम होता है इंटरव्यू का, इसलिए मैं टाइम ऑफ नास्ट पे आऊँगी. आपका टाइम नास्ट में कैसा था? नस्ट में टाइम अच्छा था, और वहाँ पे हम सुनते थे कि इस्लामाबाद में एक नया कैंपस बन रहा है. आई स्टडीड इन रावलपिंडी, तो बहुत दिल करता था, और इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस माशाल्लाह. एंड हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा. वी रियली एंजॉयड. टीचर्स बहुत अच्छे थे, स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था. और ऑल्दो वी वुड हैव लव्ड के हमारे होते हुए हम नए कैंपस में मूव कर जाते, बिकॉज व्हेन आई वेंट एंड सॉ इट, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु इज इनटू स्पोर्ट्स अ लॉट. तो मुझे वहाँ खास तौर पे ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं. बट इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस स्टार्टिंग देयर. यस, आप आपके टाइम के सिर्फ 5 साल बाद मूव किए थे हम, 2009 में मूव किए थे. ये बिल्कुल. मैं ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में ही कहती हूँ, पीपल मस्ट बी टायर्ड ऑफ इट, बट आई पर्सनली थिंक जो लालकुर्ती वाला कैंपस था, वहाँ छोटा होने की वजह से इतनी बॉन्डिंग थी कि वो जो मेमोरीज हैं वो उनकी अपनी जगह है. आई डिड बीबीए फ्रॉम लालकुर्ती एंड एमबीए फ्रॉम H12. वो बहुत जबरदस्त कैंपस था, उसकी अपनी फैसिनेशन थी, बहुत चार्मिंग एक्सपीरियंस था, लेकिन इटसेल्फ लालकुर्ती वाला कैंपस जो है उससे हमारी एसोसिएशन ही और तरह की है. मे बी अंडरग्रेड में और ज्यादा होती है. आई पर्सनली थिंक अगर अब मैं कभी आई गेट अ चांस टू विजिट दैट कैंपस, आई प्रॉब्ली स्टार्ट क्राइंग, बिकॉज इतना हम लोगों की उससे बॉन्डिंग है और इतना हमारा टाइम गुजरा हुआ है. आप लोगों का था भी, शुरू के बैचेस थे और थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशनल स्टेज भी थी. यू ऑल ऑफ यू गाइस प्लेड अलोंग एंड मेड निम्स व्हाट इट वाज. सो उसका क्रेडिट स्टूडेंट्स को भी डेफिनेटली जरूर जाता है. बहुत अच्छा था. आई थिंक आपकी बात बिल्कुल सही है. आई एम ऑल्सो द वन हु लाइक्स ये जो लाल कुर्ती की एक पूरा अपना वो एरिया है, उसकी एक हिस्ट्री है पूरी. एंड इट वाज लवली टू रोम अराउंड ऑन इन दोज बाजार्स एंड एवरीथिंग. मैं जो नए कैंपस की बात कर रहा हूँ, दैट्स ओनली फॉर द रीजन ऑफ स्पोर्ट्स, बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स को मैं बहुत मिस करता हूँ wherever I am. Otherwise, it was a beautiful place. डेफिनेटली H12 इज इट्स एन अमेजिंग कैंपस. बहुत जबरदस्त बन गया है वहाँ पे, और स्पोर्ट्स भी, और बहुत ज्यादा होराइजन. जब भी हम फीमेल्स की बात कर रहे थे कि कम है, बहुत से ऐसे कॉलेजेस में नास्ट के जहाँ पे फीमेल्स की इनटेक कम थी, लेकिन उन्हीं के स्कूल्स जब स्टार्ट हुए H12 में, तो वी सी अ लॉट ऑफ जेंडर बैलेंस एंड वी Yeah. सॉ अ लॉट मोर इनटेक. सो
on all levels it has improved a lot, mashallah. So of course इस move ने बहुत help किया NASP की, लेकिन it took its sweet time for sure. किसी student को, किसी favorite teacher को आप याद करना चाहते हैं? टीचर को क्या कहना चाहता हूँ? याद करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जो आपको दिल चाहे. So I had a lot of good teachers. I can recall, of course, Dr. Nafis थे तब. I had a good time. उनके साथ अभी भी कभी-कभी मुलाकात हो जाती है. And there were quite a few other teachers जिनसे मेरी बाद में भी मुलाकात हुई. एक डॉक्टर फहीम थे. So I met him once. Later on, he was teaching somewhere else. तो इस तरह के मेरा काफी अच्छा रहा एक्सपीरियंस. अल्हम्दुलिल्लाह, it was really good. अकाउंटिंग और फाइनेंस वाले टीचर्स के तो मुझे नाम भी याद नहीं है, क्योंकि वो मुझे I was not good at accounting or finance. Although मेरा फाइनेंस में B+ था, but फाइनेंस वाले टीचर मुझे वासिक साहब याद हैं. I don't know where he went. I tried to get in touch with him, but I couldn't. चलिए माशाल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड लाइक आई सेड, आप जिस फील्ड में हैं इसमें मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ. आई थिंक वी रियली नीड सच people guiding people at the right time. It opens up horizons, and yes, it's not just about salary, it's not just about financial status at the end of your fancy job title or something. It's overall satisfaction, fulfillment of a person as well, which is very, very important, and we often neglect that. So I'm glad there are people like you working in Pakistan and helping people. So thank you so much for all of that. Thank you for your time today. Inshallah, we'll see you grow even more in future. Okay, thank you so much. It's a wonderful job that you're doing. Keep doing it, and God bless you. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for watching. Allah Hafiz.